بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر قبہ القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے اسلام اور قبروں کی پوجا۔ اس درس کو خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ سید سینٹر قبہ القصیم کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ سنیے، سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو، ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے۔ انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کلبلاتا ہوگا، بچلتا ہوگا کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے؟ جب وہ اللہ کے بارے میں اتنا اچھا عقیدہ رکھتے تھے کہ آج کل کے یہ ہمارے ظالم کفار نہیں رکھتے ہیں، تو پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے گئے؟ ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ ان کے بہو بیٹیوں کو غلام کیوں بنایا گیا؟ ان کے گھروں پر قبضہ کیوں کیا گیا؟ ان کے مال و دولت کو مال غنیمت کیوں بنایا گیا؟ آئیے قرآن ہی سے اس کا جواب لیتے ہیں، قرآن سے ہم اس کو سوال کرتے ہیں۔ اے قرآن تو بتلا کہ آخر وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے بارے میں یہ تمام سب عقائد رکھتے تھے، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ پھر ان سے قتال کیوں کیا گیا؟ کیوں باپ کے سامنے
बाप बेटे के सामने तलवार बेनियाम करके गज़वे बदर में निकला? क्यों उनके मालों को माले गनीमत समझा गया? क्यों बेटे और बाप में लड़ाइयां हुई? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए? क्यों उनके दौलतों को माले गनीमत समझा गया? कुरान से हम पूछते हैं, कुरान हमें जवाब देता है, और कुरान हमें साफ साफ इसका जवाब यूं देता है कि सुनो सुनो दुनिया के लोगों, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये लोग जो थे, ये कुछ हस्तियों को, जरा गौर से सुनना, ये कुछ हस्तियों को, कुछ लोगों के बारे में, कुछ हस्तियों के बारे में ये अकीदा रखते थे कि इन हस्तियों को, इन शख्सियतों को, इन लोगों को अल्लाह की तरफ से फितरी कुव्वतों से बालातर कुव्वत अता की गई है। और मैंने इसकी तशरीह भी की है। फितरी कुव्वत से बालातर कुव्वत का मतलब क्या है मैंने अभी बतलाया है, और हो सकता है तकरीर के बाद मैं पूछूं कि इसका मतलब क्या है। आपकी जो कुव्वत है उससे बालातर कुव्वत, वो ये अकीदा रखते थे कि ये जो हस्तियां हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ हमारी फितरी ताकतों से हाई लेवल की ताकत अता फरमाई। भाई हाई लेवल के लोग हैं, खास पावर अता फरमाया अल्लाह ताला ने, खास पावर। और वो ये समझते थे कि ये जो हस्तियां हैं ये अल्लाह से हमारी सिफारिशें करवाएंगी। क्या करवाएंगी? हाँ, शफी और मददगार होंगे, हमारी मुरादें अल्लाह से पूरी करवा देती हैं और हमें अल्लाह से करीब कर देती हैं। फिर वो मुशरिकीन जब ये अकीदा रखते थे तो उनके साथ चंद मरासिम और चंद आमाल भी करते थे, चंद कार्यक्रम होते थे उनके, जो वो उनके साथ करते थे इस मोहब्बत और अकीदत में, जो यकीनन ये आमाल जो थे उन हस्तियों को खुश करने के लिए, अब जाहिर है वही सिफारिशी हैं, वही मददगार हैं, वही उनके मुरादों को पूरा करवाने वाले हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जब ही तो वो राजी और खुश रहेंगे, जब ही तो वो दया करेंगे, वरना बद्दुआ करेंगे। हाँ, इसलिए वो कुछ आमाल किया करते थे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इबादत करार दिया। उस आमाल को उनके साथ जो करते थे अल्लाह ने उसको इबादत करार दिया और इसी वजह से उनको मुशरिक कहा गया। अब आइए ये देखते हैं, आपने अभी सुना कि वो हस्तियां थी, वो जात थी, कुछ लोग थे, वो जात और वो हस्तियां कौन थी? सवाल पैदा होता ना, आखिर वो कैसे लोग थे, वो कौन लोग थे? क्या वो गाय बछड़े थे? हैं? क्या वो चूहे बिल्ली थे? वो कौन थी? वो हस्तियां क्या थी? वो चीजें क्या थी जिनको वो ये अकीदा जिनके बारे में वो रखते थे कि ये हस्तियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ खास पावर दे करके उतारी गई हैं, वो हस्तियां कौन सी थी? तो आइए इसे भी हम कुरान से पूछते हैं। चुनांचे मेरे अजीजों, जिन हस्तियों को वो पुकारते थे उन हस्तियों के लिए, उन्हें राजी और खुश करने के लिए वो बकरे ज़बह करते थे, नजर नियाज करते थे और उन्हें मुश्किल कुशा समझते थे। उनको वो अपने कहीं भी रहते थे उनको अपनी मदद के लिए पुकारा करते थे। वो 4 किस्म के लोग थे, 4 किस्म की चीजें थी। कितनी? हाँ, उंगलियों पे गिनना कि कुफारे मक्का जो थे जिन चीजों को पूजते थे, जिनके उनके साथ वो हस्तियों के साथ अकीदा रखते थे, वो कितने किस्म के थे? 4। और ये चारों किस्म की चीजें कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बयान फरमाई हैं। नंबर 1 मलाइका, फरिश्ते थे जिनको वो पूजते थे। नंबर 2 अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे, अभी मैं बताता हूं। नंबर 3 सालिहीन और उस दौर के नेक लोग, अल्लाह के मुकर्रब बंदे लोग थे जिनको वो लोग ये अकीदा रखते थे कि ये बड़े हाई लेवल के लोग हैं। नंबर 4 शजर हजर, पेड़ पौधे और सूरज और चांद थे जिनकी वो पूजा और परस्तिश करते थे। अब आइए कुरान करीम से हम दलील लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासन अशहिदू खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यख़रुसून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये मुशरिकीन, इन्होंने फरिश्तों को जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं उनके बारे में ये बातें मशहूर कर दी कि ये फरिश्ते लड़कियां हैं। क्या हैं? फरिश्ते क्या हैं? बेटियां हैं, औरतें हैं। लोगों के अंदर इन मुशरिकों ने यह मशहूर कर दिया कि ये फरिश्ते बेटियां हैं, औरतें हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब मैंने इनको पैदा किया, क्या ये मशहूर करने वाले उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे?
इन्हें इल्म कैसे हुआ इस बात का, और ये बात लिखवा ली जाएगी उनकी गवाही, और उनसे जवाब तलब होगा क़यामत के दिन। आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये फरिश्ते बेटियां हैं या औरतें हैं या लड़कियां? अल्लाह फरमाता है फिर वो क्या कहते थे, और कहते थे लौ शाअर रहमानु मा अबदनाहुम, अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत थोड़ी करते। ये अल्लाह चाह रहा है जब ही तो हम इनकी इबादत कर रहे हैं। देखें, इस आयत करीमा से दो गलतियों का पता चला। एक तो ये कि वो फरिश्तों को बेटियां तस्वुर करते थे, और दूसरी गलती ये थी कि देवियां समझकर उनकी पूजा और बोलो पूजा और पाठ करते थे। आज ज्यादातर हमारे मुल्कों में देखोगे, भारत शरीफ के अंदर अक्सर व बेशतर देवियों ही की पूजा होती है। कुम्हार है, मट्टी निकालता है किसी जूहड़ से, किसी तालाब से, किसी गड्ढे से, सड़े गड़े मट्टियां और सड़ी गली गोबरे ओबरे डालकर और घास फूस डालकर पैरों से खुदलता है, उसको मसलता है, मट्टी तैयार होती है। फिर जनाब आली वो सतवंत संतोषी माँ की तस्वीर तैयार करता है, बाकायदे उनकी मूर्तियां बनाता है, कुम्हार बनाता है, संवारता है, उनकी छातियों तक को गोल करता है। करता कि नहीं करता? हाँ, बाकायदे उनकी छातियां, उनकी रान, उनके गाल, उनके चेहरे खूब सजा संवार कर और खूब लिबास वास पिन्हा कर और पेंट ओंट मार कर जब सजा संवार कर रखता है, तब महंत जी आते हैं, पंडित जी। पंडित जी आते हैं। कौन से पंडित जी? वो पंडित जी जो कहते हैं ये शूद्र हैं, शूद्र कुफ्फा, ये कुम्हार जो होते हैं नीच जात के लोग हैं, शूद्र हैं। अगर इनका साया हमारे जिस्मों पर पड़ जाए तो हमारे लिए गुस्ल करना, स्नान करना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये नीच तबके के लोग हैं। अरे यही पंडित जी से कहो, पंडित जी दान दक्षिणा लेने के लिए, हड़प करने के लिए, तो तुम भूल जाते हो ये बात कि इस ईश्वर को बनाने वाला भी यही शूद्र है, यही नीच जात का है। इसी ने पेंट मारे हैं, इसी ने गाल और छातियां तैयार की हैं, इसी ने खूबसूरती बना बना करके सजा के रखा है। आज तुम दान दक्षिणा लेने के लिए महंत बन के आके इसके पूजा पाठ करवाते हो। है कि नहीं हकीकत ये? तो देवियां आजकल इसीलिए कोई कौन सी देवी है, कोई लक्ष्मी देवी है, कोई सतवंती संतोषी देवी है, कोई काली देवी है, कोई पीली देवी, सब पूजे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसी नियतों से वो तमाम सब चीजें उन्होंने ली हैं और इस तरह से वो उसकी पूजा कर रहे हैं कि ये कहते हैं देवी देवता हैं, अल्लाह के बड़े मुकर्रम नौज़ुबिल्लाह हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये कहते हैं मुशरिकीन मक्का, बात ये मुशरिकीन मक्का की बात चल रही थी। लौ शाअर रहमानु मा अबदनाहुम, अल्लाह ना चाहता तो हम इनकी इबादत न करते। अल्लाह फरमाता है इन्हें इसकी कुछ हकीकत मालूम नहीं है, बल्कि ये लोग अटकल पच्छू मार रहे हैं। तो इस आयत करीमा से एक बात मालूम हुई, और वो बात यह है कि मुशरिकीन मक्का जिन हस्तियों की पूजा करते थे, इबादत करते थे, उनमें फरिश्ते भी थे। उनमें कौन लोग थे? फरिश्ते। पता चला कि नहीं पता चला? अब आइए, वो लोग सालिहीन और बुजुर्गाने दीन की भी पूजा करते थे, और अभी मैं बताता हूं कि वो कौन से आमाल थे जो फरिश्तों और नेकूकार लोगों के साथ करते थे, जिन्हें इबादत और पूजा के नाम से याद किया गया है। वो अभी मैं बताता हूं। वो सालिहीन और बुजुर्गाने दीन कौन थे? अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहुमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु वयरजूना रहमतहु वयख़ाफ़ूना अज़ाबहु इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 57। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ये वो लोग हैं, वो मकबूल बंदे हैं, ये वो मकबूल बंदे हैं जिन्हें काफिर पुकारते हैं, आवाज देते हैं, अपनी मदद के लिए उनको पुकारते हैं। अल्लाह फरमाता है अरे ये अल्लाह के मकबूल बंदे खुद अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए वसीला और जरिया और रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो जो खुद अल्लाह से करीब होने के जरिए ढूंढ रहा हो, तुम उसको आवाज दे करके क्या मतलब हासिल करना चाह रहे हो? ये तो खुद मुहताज हैं, ये तो खूब अल्लाह से करीब होने के लिए ये कोशिश और जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इनमें जो कोई ज्यादा मुकर्रब है वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखे और अल्लाह के अजाब से ये डरते हैं बेचारे। तो तुम इनको क्यों पुकारते हो? तो इस आयत करीमा से हमें यह बात मालूम हुई कि कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का जिन हस्तियों को पुकारते थे अपनी मदद के लिए, वो बारगाह इलाही के मकबूल बंदे थे, सालिहीन थे, नेक लोग थे।
اور سنو وہ لوگ انبیاء علیہم کو بھی پکارتے تھے، نبیوں کو بھی آواز دیتے تھے، ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سورہ بقرہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں،